अजय जी। जी, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो नई पहल की जा रही है अमृत ट्रेन के जरिए, जो आज अमृत भारत ट्रेन, और जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है, ये जो नई शुरुआत है, इस वक्त आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखा करके अमृत ट्रेन को रवाना करने की तैयारी हो जा चुकी है। ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स अमृत ट्रेन। নবনির্মিত অযোধ্যা ধাম স্টেশনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাকে স্টেশনের সব অংশ ঘুরে ঘুরে দেখালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। ওনার সঙ্গে রয়েছেন আদিত্যনাথ। সবুজ পতাকা নেড়ে উদ্বোধন করলেন মোদী। অযোধ্যা স্টেশন থেকে বিপরীতমুখী গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করল নীল সাদা রঙের বন্দে ভারত এবং গেরুয়া ছাই রঙের অমৃত ভারত ট্রেন। মোট 6টি বন্দে ভারত এবং 2টি অমৃত ভারত ট্রেনেরও সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অযোধ্যায় যাওয়ার আগে গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলে মোদী লিখেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অযোধ্যায় বিশ্বমানের পরিকাঠামো তৈরি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্য রক্ষা করতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। আমি শনিবার অযোধ্যায় নতুন করে তৈরি করা বিমানবন্দর এবং রেল স্টেশনটির উদ্বোধন করব। পাশাপাশি অযোধ্যায় আরো অনেক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করব, যা অযোধ্যা, উত্তরপ্রদেশ এবং সর্বোপরি দেশের মানুষের জীবনযাত্রা আরো সহজ করে তুলবে। এমনটাই লিখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ওনার এক্স হ্যান্ডেলে। যেমন কথা তেমন কাজ। আজ পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুসারে প্রধানমন্ত্রী ঠিক সময়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন অযোধ্যায় এবং সেখানে একটি রোড শো করেন প্রধানমন্ত্রী। রোড শো শেষে তিনি সরাসরি চলে যান অযোধ্যা ধাম নবনির্মিত যে রেল স্টেশনটি, সেখানে গিয়ে উনি উদ্বোধন করেছিলেন সেই রেল স্টেশনের। সেই গোটা রেল স্টেশনে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সেখানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আর কয়েকদিন বাকি সেখানে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে আগামী জানুয়ারি মাসের 22 তারিখে এবং তার আগেই কিন্তু অযোধ্যায় অন্যান্য ছোটখাটো বিভিন্ন জিনিসের প্রতি কিন্তু নজর দেওয়া হচ্ছে। গোটা অযোধ্যাকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, যার জন্য রীতিমতো এক সাজো সাজো রব কিন্তু অযোধ্যায়। আগামী 22 জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগেই কিন্তু আজকে অর্থাৎ 30 ডিসেম্বর শনিবার দিন কিন্তু অযোধ্যাবাসীকে একটি বড় উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে একটি নবনির্মিত অযোধ্যা ধাম স্টেশনের উদ্বোধন করলেন। এর পরবর্তী সময় তিনি চলে যাবেন সেখানে নবনির্মিত বিমানবন্দরের, সেই বিমানবন্দরেরও উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও একাধিক কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। देखिए, तो रामघाट की तरफ अगर गोरखपुर से लोग आ रहे हैं तो रामघाट स्टेशन को भी विस्तृत विस्तार दिया जा रहा है। फैजाबाद का जो पुराना जंक्शन है, जिसको अयोध्या कैंट कहा जाना जाता है, अयोध्या कैंट का विस्तार तो है ही है, जो कि शहरी सुविधाओं से पहले से ही लैस है। तो जयश्री जी, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है नए अमृत ट्रेन की। कहा जाता था वंदे भारत जो ट्रेन है वो बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था ये सरकार कर नहीं रही है। ये एक नई पहल। आपको याद होगा, अगर आपने जब पहले सफर किया होगा, जिसको जनरल बोगी कहा जाता था, घुसना बड़ा मुश्किल होता था। किसी ने रूमाल फेंक करके अगर कोई सीट हासिल कर ली तो चलिए उनका तो सफर किसी तरह से कट जाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को खड़े होकर के बिना किसी स्थान के, बिना किसी सुविधा के सामान को लादे लादे आप बहुत ही मुश्किल से अपने गंतव्य तक जा पाते थे। ये अमृत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह बच्चों के साथ संवाद करते हुए, कोई उन्हें कविताएं सुना रहा है, कोई उन्हें अपने लिखे हुए संस्मरण सुना रहा है, कोई चित्रों के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा है। ऐसी तस्वीरें हम हमेशा प्रधानमंत्री के संपर्क यात्रा के दौरान देखते रहे हैं। मेट्रो कोचेस में खास तौर पर जब वो सफर करते हैं तो ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए, बहुत ही अत्याधुनिक, ये बिल्कुल जनरल वार्ड का जो डिब्बा है उसको कैसे आधुनिक बनाया गया है, कैसे चार्जिंग की व्यवस्था, क्योंकि नए बदलते हुए माहौल में सभी लोग मोबाइल फोन के जरिए कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हर कोई हर स्टेशन पे देखता है कि इस वक्त मेरी गाड़ी कहां पहुंची, मैं कितनी देर बाद अपने घर पहुंच पाऊंगा, रेलवे स्टेशन पे कितनी देर रुक पाऊंगा, वहां पर क्या सुविधाएं हैं। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पब्लिक अनाउंसमेंट की सुविधा हो या फिर क्लीन नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स की सुविधा हो, जो कि नॉर्मल जो यात्री के डिब्बे हैं उसमें कैसे दी जाए और कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसको भी सुविधाजनक बनाया जाए, उसकी एक कोशिश की जा रही है। अमृत भारत जो ट्रेन नई आज शुभारंभ की जाएगी, 2 अमृत भारत ट्रेन
यहां से अयोध्या से, जो कि दक्षिण भारत को और खासतौर पर मिथिलांचल को अयोध्या के साथ जोड़ेगी, नई दिल्ली को भी जोड़ेगी। तो उसके साथ साथ जो 6 वंदे भारत ट्रेन हैं उसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा, जिनका हॉल्ट अयोध्या धाम को बनाया गया है। स्पष्ट तौर पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब रामलला विराजमान होंगे तो लाखों की संख्या में जो पर्यटक आएंगे उनको समायोजित करने के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत होगी। कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग सड़क परिवहन से, कुछ लोग वायुयान के जरिए, कुछ लोग अपनी गाड़ी से, कुछ लोग बसों के जरिए, बहुत सारे यात्राओं के जरिए, बहुत सारे यात्रा के जो साधन है उनका इस्तेमाल करते हुए अयोध्या तक पहुंचना चाहेंगे। साथ ही साथ वाटरवेज का भी निर्माण किया जा रहा है, वहां पर भी जो सुविधाएं हैं, बताया जा रहा है कि वाटर मेट्रो की भी शुरुआत अयोध्या में होने वाली है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और विरासत के साथ कैसे विकास को आप जोड़ते हैं उसकी एक वानगी, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। राजेश राज, क्या आप मेरे साथ हैं? या अश्विनी जी? जी अजय जी। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो नई पहल की जा रही है अमृत ट्रेन के जरिए, जो आज अमृत भारत ट्रेन, और जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है, ये जो नई शुरुआत है, इस वक्त आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखा करके अमृत ट्रेन को रवाना करने की तैयारी हो जा चुकी है। ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स, अमृत ट्रेन अब रवाना अयोध्या धाम। मेक इन इंडिया पूरी तरह से भारत में बनी हुई, ये देखिए 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेन, 8 ट्रेन का সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।